નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું શિવમ. હોટ ટોપિકમાં આજે આપણે વાત કરીએ છીએ દિલ્હીના જંતર મંતર પર કુસ્તીબાજોએ ફરી એકવાર ધરણા પ્રદર્શન જે શરૂ કર્યું છે અને જંતર મંતર પર જે પ્રકારે અખાડો છે તેમણે ત્યાં જ બનાવી લીધો છે. આની અગાઉ જ્યારે તેમણે માંગ કરી હતી યૌન શોષણના મામલે અને તેમાં તેમની માંગ હતી કે એફઆઈઆર નોંધવામાં આવે, પરંતુ હજી સુધી તેમાં કોઈ જ પ્રકારની એફઆઈઆર છે તે નથી નોંધવામાં આવી અને તેને જ કારણે ફરી એકવાર તમામ કુસ્તીબાજો છે તે ધરણા પર ઉતર્યા છે. આમની આપણે વાત કરીએ તો WFIના જે પ્રમુખ છે બ્રિજભૂષણ શરણસિંહ, તેમની વિરુદ્ધમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવે તેવી તેમની માંગ છે, પરંતુ હજી સુધી નથી જે એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી અને આજે સુપ્રીમમાં તેની સુનાવણી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હાથ ધરાવવાની છે. હવે આગળ શું થશે આ મામલે, કારણ કે હવે આ મામલે કોંગ્રેસ તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે કુસ્તીબાજો છે તેમને સમર્થન આપી રહી છે. રાજકીય મુદ્દો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક બનતો જઈ રહ્યો છે ધીરે ધીરે તેવું લાગી રહ્યું છે. બીજી બાજુ જાણીતા બોલિવૂડના કલાકારો છે, સાથે જ જાણીતા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ છે, તે પણ હવે આમાં કૂદી પડ્યા છે. પોતાના નિવેદનો છે તે તેમણે આપ્યા છે. કપિલ દેવની વાત કરીએ તો કપિલ દેવે એમ કહ્યું છે કે શું આ ખેલાડીઓને ન્યાય મળશે કે કેમ. આ સિવાય આપણે વાત કરીએ જાણીતી અભિનેત્રી ઉર્મિલા માતોંડકરની, તો તેઓ પણ પોતાનું નિવેદન આપવામાં પાછા નથી પડ્યા અને તેમણે જણાવ્યું છે કે જ્યારે ગોલ્ડ મેડલ જીતે છે કે કોઈ અન્ય મેડલ જીતે છે ત્યારે જે ફોટા પડાવવા લોકો આવી જાય છે, જે લોકો આવી જાય છે, ત્યારે અત્યારે ન્યાય આ લોકોને જ્યારે અપાવવાનો છે, આમની જે માંગ છે ત્યારે ક્યાં છે અને આમને ન્યાય મળશે કે કેમ, આ પણ એક માંગ છે. ઉર્મિલા માતોંડકરે પણ માંગ કરી છે કે ગૃહમંત્રી અને રમતગમત મંત્રી આ મુદ્દે ધ્યાન આપે અને આમની પોકાર છે તે સાંભળે. આ તો થઈ સમર્થનની વાત, જે કુસ્તીબાજોના સમર્થન પણ આવ્યા છે, પરંતુ બીજી તરફ વાત કરીએ તો બ્રિજભૂષણ શરણસિંહની વાત કરીએ તો તેઓ કહી રહ્યા છે કે દ્રઢતા અને સંઘર્ષની સાથે તેઓ આગળ લડતા રહેશે. આ પ્રકારે તેમણે નિવેદન પોતાનું આપ્યું છે. અને હરિયાણાની વાત કરીએ, હરિયાણા રેસલિંગ એસોસિએશનની આપણે વાત કરીએ તો હરિયાણા રેસલિંગ એસોસિએશને તમામ જે આરોપો કરવામાં આવ્યા છે કુસ્તીબાજો દ્વારા તેને ખોટા ગણાવ્યા છે અને ફોગાટ પરિવાર કે જે ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાનો કબજો જમાવવા માંગે છે રેસલિંગ એસોસિએશન પર, આ પ્રકારનો આરોપ છે તે તેમના પર લગાવવામાં આવ્યો છે. હવે પીટી ઉષાની વાત કરીએ, તેમણે પણ એક નિવેદન આપ્યું છે. તેના કારણે પણ જે કુસ્તીબાજો છે તેઓમાં નારાજગી વ્યાપી ગઈ છે. શું છે પીટી ઉષાએ કહેલું, તમામ બાબત પર આપણે ચર્ચા કરીશું. ચર્ચા સાથે હાલ આપણી સાથે મહેમાન જોડાયા છે સ્પોર્ટ્સ એક્સપર્ટ અશોકભાઈ મિસ્ત્રી આપણી સાથે જોડાયા છે અને થોડી વારમાં દિલ્હીથી આપણી સાથે વિશ્લેષક અજય તિવારી પણ જોડાશે. અત્યારે હાલ અશોકભાઈ આપણી સાથે છે. અશોકભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. અને અશોકભાઈ, શરૂઆત કરીએ અશોકભાઈ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. અશોકભાઈ, સૌથી પહેલાં આપની સાથે જે શરૂઆત કરીએ આપણે, તો જે પ્રકારે આ કુસ્તીબાજોનું જે પ્રદર્શન છે, હવે બીજી વખત તેમણે પ્રદર્શન શરૂ કર્યું છે, તેમની માંગ છે અને તેમાં જે દિગ્ગજ ખેલાડીઓ કહી શકાય, બોલિવૂડના અભિનેત્રી અભિનેતાઓ છે, ઉર્મિલા માતોંડકર છે, આ સિવાય અન્ય લોકો પણ કૂદી પડ્યા છે. કપિલ દેવે પણ જણાવ્યું છે ન્યાય મળશે કે કેમ, પરંતુ સામે પક્ષે કુસ્તીબાજો પર પણ આરોપ લાગી રહ્યા છે. આ તમામ બાબત ક્યાં જઈ રહી છે અને બીજી બાજુ રાજકીય પણ થતું હોય તેવું પણ ક્યાંક ને ક્યાંક લાગી રહ્યું છે. કોંગ્રેસ કુસ્તીબાજોને સમર્થન આપી રહી છે. આપ શું કહેશો આ સમગ્ર વિવાદને લઈને? પહેલી વસ્તુ તો રમત ગમત સાથે રાજકારણ સંકળાયેલું છે એ ભારતમાં નવી વસ્તુ નથી. વર્ષોથી સત્તાધીશ અથવા તો સત્તામાં રહેલા લોકો મોટા ભાગે મોટા એસોસિએશન જેટલા પણ છે એની ઉપર એ લોકોનું રાજ હોય છે, એમ કે ત્યાંનો વર્ચસ્વ હોય છે. કારણ એવું હોય છે કે એસોસિએશન ચલાવવા માટે પણ ફિનાન્શિયલ જરૂરતો હોય છે. એ ફિનાન્શિયલ જરૂરતો માટે કોઈ પણ રીતે એવી વ્યક્તિ એ સંસ્થાનો પ્રમુખ અથવા તો સેક્રેટરી હોય કે જેની પાસે વગ હોય અથવા તો જે સારી રીતે ફંડિંગ લાવી શકે અથવા તો સરકારની યોજનાઓને વધારે સારી રીતે એ એસોસિએશન પાસે લાવી શકે, એવી વ્યક્તિને મોટા ભાગે એસોસિએશનના પ્રમુખ અથવા સેક્રેટરી બનાવવામાં આવે છે. આ આજની વાત નથી. અત્યારે નો ડાઉટ કે ઘણી બધી જાગૃતિ આવી છે અને મોટા ભાગના એસોસિએશન હવે એમ પણ માનતા થયા છે કે રમત ગમત સાથે સંકળાયેલા મોટા હોદ્દા પર હોવી જોઈએ, જેથી કરીને ખેલાડીઓની વાતને રજૂ કરવામાં કોઈ તકલીફ ના પડે. કારણ કે જ્યારે સત્તા અને રાજકારણ આ બંને છે અને એક મહત્વની પોસ્ટ ઉપર એ વ્યક્તિ છે, તે વખતે ખેલાડીઓને કેટલો ન્યાય કે અન્યાય થાય છે એ બહુ મહત્વનું છે અને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ખેલાડીઓ પાછા પડતા હોય છે. આ કોઈ આજની ઘટના નથી. આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ બનેલી છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક દબાઈ પણ ગયેલી છે. બે વસ્તુ છે, ખેલાડીઓને આગળ વધવું હોય છે
એક અપેક્ષા, એક આકાંક્ષા, એક એ હોય કે ભાઈ ગમે તેમ કરીને આપણે આગળ વધીએ. અને બીજી અગત્યની વાત એ બને છે કે તે વખતે આગળ વધવા માટે આર બી એબલ ટુ પુટ ધ રાઈટ વે, આપણે પોતાની જે ક્ષમતા છે એને સાચી રીતે પ્રદર્શિત કરી શકીએ છીએ કે નહીં, એ વસ્તુ ત્યાં આગળ ઊભી થાય છે. એટલે જ્યારે તમારી પાસે રાજકારણ અને હોદ્દો, આ બંને વસ્તુ, રમત ગમતનો હોદ્દો, આ બંને વસ્તુ જ્યારે આવતી હોય ત્યારે આ સંઘર્ષ જોવા મળ્યો છે. કારણ કે બની શકે કે ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ કોઈ ક્ષતિ હોય અને એ ક્ષતિને ઉજાગર કરવામાં આવી છે, તો એની તપાસ કરીને એની પાસે કંઈ ને કંઈ આપણે એનો રિઝોલ્વ કરવાની કોશિશ કરીએ. બીજી વાત, સુપ્રીમ કોર્ટે પણ આજે એનો એ આપેલો છે. આજે જોઈએ છે શું થાય છે, કે આજે કેમ એફઆઈઆર નથી નોંધી એ પણ પૂછવામાં આવ્યું છે. એટલે ત્યાર પછી ખબર પડશે. કારણ એવું છે કે એફઆઈઆર નોંધવા માટે જે તથ્યો સામે રાખવામાં આવ્યા છે એ તથ્યો શું એફઆઈઆર માટે પૂરતા છે કે નહીં. બીજું કે જે રીતે મેરીકોમ કમિટીનો રિપોર્ટ છે, કમિટીનો રિપોર્ટ કેમ હજુ સુધી આવ્યો નથી, કેમ એક્સપોઝ થયો નથી, કેમ બહાર નથી આવ્યો, અથવા તો ક્યાં સબમિટ થયો, એની પણ કંઈ આપણને એ થઈ નથી. એટલે ક્યાંક ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે જ્યાં રાજકારણ અને રમત ગમતનું જે ક્ષેત્ર છે એની પ્રમુખ પદ, આ બેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો જોવા મળી છે. ક્યાંક બની શકે કે સત્તાધીશ પાર્ટીના વ્યક્તિ છે એટલે કદાચ આવી રીતના એફઆઈઆર નોંધવામાં નથી આવતી, એવી પણ વાતો છે. તો આ બધાની વચ્ચે આપણે હવે એક જ આશા એવી રહી કે ભાઈ સુપ્રીમ કોર્ટ શું કહે છે. કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટે આ પહેલા તો ચોક્કસ કહ્યું છે કે આ ધીસ ઇઝ વેરી ઘણું ખરાબ કૃત્ય છે અને આની એફઆઈઆર તો થવી જોઈએ, તો વાત કરેલી જ છે એમણે. પણ જે ચુકાદાની વાત છે અથવા તો જે કહેશે એના ઉપર ખાસ નજર રહેલી છે. કારણ કે જે રીતે ગતિવિધિઓ આગળ વધી રહી છે, ક્યાંક ને ક્યાંક શંકાની સોય ચીંધાય એ સ્વાભાવિક છે. જો પહેલા જ ધડાકે આ બધી વસ્તુઓ પતી ગઈ હોત તો કદાચ દેશના માટે લડીને મેડલ્સ લાવનારા આ ખેલાડીઓને આવી રીતના રોડ પર ઉતરવું ના પડ્યું હોત. આ એક બહુ જ ગંભીર બાબત તો છે જ કે રેસલરોને ન્યાય માટે મેદાન પર ઉતરવું પડ્યું. એની સાથે કપિલ દેવે પણ કહ્યું છે કે વાય ક્રિકેટર્સ આર નોટ જોઈનિંગ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક એક જુવાળ ઉભો થઈ રહ્યો છે. આ વસ્તુની પ્રત્યે સંવેદના લોકો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, સાથે આવો વિરોધ પણ કરી રહ્યા છે કેમ આમ થતું નથી. તો ક્યાંક ને ક્યાંક બધી જ બાબતો જો જોઈએ તો આપણે હવે છેલ્લું તારણ શું કહે છે सुप्रीम कोर्ट, एना ऊपर આપણે આધાર રાખવો રહ્યો. आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में अभी बात करें तो हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने भी साफ कह दिया है कि ये सारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है और जो फोगाट परिवार है वो अपना दबदबा बनाना चाहता है, इसके लिए ये सब हो रहा है। आप क्या मानते हैं? जी जी जी, भारत देश में इस खेल जगत को बड़ा अनोखा रूप दिया गया है। हमारे इसी देश के अंदर क्रिकेट भी होता है, बहुत से लांछन लगते हैं। क्रिकेट को खरीदने की भी बात की जाती है, प्लेयर को खरीदने की भी बात की जाती है, उसकी भी जांच होती है और उस जांच में निष्पक्ष निर्णय आता है। आज जो ये पिछले कई वर्ष, मतलब 1 साल से हो ही गया, 1 साल से ऊपर हो गया, आप देखिए इस केस को किस तरह से ले जाया जा रहा है। यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्रजभूषण सिंह के तरफ 50% से ज्यादा प्लेयर्स हैं और फोगाट की तरफ 30% प्लेयर समर्थन में है और कभी फोगाट जी का बयान कुछ और आता है, कभी उनका बयान कुछ और आता है। और आज जो ये फैसला आने वाला है, ब्रजभूषण सिंह इसीलिए कल भी ये बात कह रहे थे कि मैं निश्चिंत हूं, कोर्ट जो कहेगा मैं वो करूंगा। बल्कि कई बार उन पर जो लांछन लगाए गए हैं, ब्रजभूषण सिंह पुराने सांसद हैं, पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो लोग कह सकते हैं कि उनका बचाव किया जा रहा है, लेकिन जब खेल के मैदान में प्लेयर आपस में लड़ रहे हो, आज जंतर मंतर पे जो धरना दिया जा रहा है उसके विरोध में भी कई लोग खड़े हैं, कई लोग उसके समर्थन में नहीं गए हैं। तो यह भी एक सोचने वाली बात है। भारत देश की खेल दिशा को खराब करने की कोशिश प्लेयर ना करें और मैं यही कहूंगा कि न्यायालय का शब्दों का, न्यायालय के निर्णय का इंतजार करें
जो सच होगा वो निश्चित तौर से न्यायालय की जांच में आ जाएगा। और ब्रजभूषण सिंह अगर गलत होंगे तो निश्चित तौर से उनको सजा मिलेगी। और फोगाट परिवार जिस तरह से एक दूसरे को लड़ाने की बात कर रहा है, मैं उसके समर्थन में भी हूं कि ठीक है आपने एक कंप्लेन किया हुआ, लेकिन आप प्लेयर्स को लड़ाने की बात करके जंतर मंतर पर जा करके जिस तरह की बात कर रहे हैं वह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। या आपने जो एफआईआर कर दी है या जो कंप्लेन कर दी है उसका निर्णय कोर्ट द्वारा होना चाहिए, और हो रहा है उसका इंतजार करना चाहिए। वही 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 उन्होंने बात की है अजय जी कि बहुत टाइम हुआ है, अभी तक कुछ भी एफआईआर नहीं हुआ है, कुछ भी जांच नहीं हुई है, ऐसा उनका कहना है। और यही बात पीटी उषा ने बताई है, ओलंपिक की जो अध्यक्ष है ओलंपिक संघ की, उन्होंने भी बताया कि ये अनुशासनहीनता है, इससे भारत की छवि खराब होगी। और इस तरफ इन लोगों का कहना है कि बहुत टाइम निकल गया है पर कुछ भी जांच नहीं हो रही है, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है इसके लिए जांच नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर प्लेयर्स, आप ये तो देखिए ना कि सारे प्लेयर्स कहाँ हैं। उस कुश्ती कुश्ती के जितने भी प्लेयर्स हैं क्या वो फोगाट के साथ हैं? आप 50% से ज्यादा जो है वो एफआईआर ना लिखवाने के पक्ष में है, और 50% से जो कम है वो एफआईआर लिखवाने के पक्ष में है। तो विवेचना अधिकारी जो होता है, जो एफआईआर लिखने वाला होता है, उसने एप्लीकेशन ले ली है। और जब तक, ये तो कोर्ट का भी नियम कि एप्लीकेशन जरूर लीजिए और उसकी जांच करके उसकी एफआईआर कीजिए। जब वो जांच में ही पाया जाएगा तो एफआईआर निश्चित तौर से लिखी जाएगी, चाहे वो भाजपा का कितना भी बड़ा भी गद्दार नेता हो। जांच में सही आना चाहिए ना। જી જી અશોકભાઈ, જે પીટી ઉષાએ જણાવ્યું છે અને પીટી ઉષાનું નિવેદન છે કે અનુશાસનહીનતા છે અને આ રીતે કુસ્તીબાજોનો રોડ પર આવીને વિરોધ કરવો એ અનુશાસનહીનતા છે અને આનાથી ભારતની છવિ છે, ભારતની તસવીર છે તે ખરાબ થઈ રહી છે। આ નિવેદન અને તેને સામે પક્ષે બજરંગ પુનિયાએ એવું જણાવ્યું છે કે પીટી ઉષા પાસેથી આવી અપેક્ષા નહોતી, તેમણે સમર્થનમાં આ નિવેદન આપવું જોઈતું હતું। આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો પીટી ઉષાના નિવેદનને? પહેલી વસ્તુ તો પીટી ઉષા બહુ રિસ્પેક્ટેડ વ્યક્તિ છે, એટલે એમાં કોઈ સવાલ નથી। ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે આ ખેલાડીએ। એનું જે સ્ટેટમેન્ટ જે આપ્યું છે એ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર હું માનું છું કે એગ્રી થવા જેવું એટલા માટે નથી કે યસ, એમની વાત સાચી છે કે જે રીતે ઉતર્યા છે मैदान पर એ ના उतरવું જોઈએ। दैट्स नंबर 1। सेकेंडली, अब तक मैं हिंदी में बोलूंगा ताकि हमारे जो गेस्ट है वो भी समझ सके। जो इस वक्त ये जो पूरा विवाद चल रहा है जब से शुरू हुआ है तब तक अभी तक इसका क्यों कोई ये नहीं हो रहा है, कोई चीज का अंत नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत सही बात कही कि भाई एफआईआर के लिए वो अर्जी देंगे, अर्जी के ऊपर तपास करेंगे, लेकिन क्या उसमें इतना समय लगता है? क्योंकि क्या है, देखो अंडर 17 फुटबॉल में भी ऐसी बातें हुई थी, एक साइकिलिस्ट के ऊपर भी ऐसी बातें हुई, तो कई बातें होती है जबकि आपको उसकी तपास करके उसके निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। मैरी कॉम कमेटी ने जो कुछ रिपोर्ट्स दिए वो कहाँ रिपोर्ट्स, क्या बोला उसने, किसको क्लीन चिट दिया, कुछ तो बाहर आए। ये परिस्थितियां विफल इसलिए हो रही है या तो विपरीत इसलिए हो रही है कि कोई हमें हल नहीं मिल रहा है। चलो ये खिलाड़ियों की एफआईआर ये कर दी, एफआईआर लिखने से कोई गुनहगार तो होने वाला नहीं है, वो भी उसके बाद जांच ही होने वाली है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्यों एफआईआर में इतनी देरी। जैसे इन्होंने कहा, साहब ने कहा कि भाई अर्जी दी है, अर्जी के बाद एफआईआर में क्यों इतनी देरी, क्यों? जब जानते हैं कि देश के सर्वोच्च एथलेट्स या तो सर्वोच्च जो यहाँ पर पहलवान लोग हैं वो बैठे हैं, उनकी कैरियर का सवाल है, तो क्यों इसमें स्पीड नहीं कर सकते हम? क्यों हम जांच को इतनी डिले कर रहे हैं? ये बात है। ये आपने जो बात बिल्कुल सही कही कि कोर्ट जिस तरह से कहेगा, लेकिन ये तो एफआईआर की बात है, कोर्ट में तो मामला पहुंचा ही हुआ है, वो तो डेफिनेटली कहेंगे। लेकिन ये जो देरी हुई तब जाके ये मामला वहां तक भी पहुंचा है, और लोगों के मन में भी कुछ शंका कुशंका हो रही, क्यों अब तक इतने दिनों के बाद भी एफआईआर या तो जो कुछ भी इंक्वायरी थी उसका निष्कर्ष नहीं निकला। जी, क्यों बात वही है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि गुनहगार तो नहीं हो जाएंगे, उनको अगर लड़ना है, उनको ऊपर जो भी कायदागिरी से आगे आगे बढ़ना है उनको, तो जांच कराए। एफआईआर क्यों लेट हो रही है? उसमें क्या रीजन हो सकता है? जो भी साक्षी है, जो भी बात बोल रहे हैं यौन शोषण की, उसमें कमी है, इसके लिए एफआईआर नहीं हो रही है, या फिर जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी के, इसके लिए? नहीं, मैं आदरणीय अपने पैनलिस्ट बड़े भाई की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफआईआर जल्दी से जल्दी जांच करके लिख देनी चाहिए।
लेकिन अब इसी को लोकतंत्र का एक षड्यंत्र कहा जा सकता है, कि या इस लोकतंत्र में जो सिस्टम है उसको आप चैलेंज करने की बात यहाँ पर आती है, कि एक कई बार का सांसद, एमएलए रहा हुआ व्यक्ति जो ब्रजभूषण सिंह है, इसके ऊपर कभी इस तरह का कोई आरोप था नहीं। और इस तरह की जो कुश्ती संघ का प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर अगर ऐसा आरोप लगता है, तो एप्लीकेशन लेने के बाद यदि एफआईआर लिख दी जाती है, तो एफआईआर के बाद फिर वेट नहीं किया जाता है। एफआईआर के बाद ब्रजभूषण सिंह को जेल में डाल दिया जाता है। अगर एफआईआर लिख दी गई तो उसमें एफआईआर में धाराएं लिखी जाती हैं, और धाराएं अगर लिख दी गई तो उस धारा के अनुसार ब्रजभूषण सिंह को इमीडिएट गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ेगा। हाँ, मैं अपने पैनलिस्ट बड़े भाई से पूरी तरह सहमत हूं कि इतना लेट क्यों, जब एप्लीकेशन ही लिया है तो एफआईआर लिखना है, नहीं लिखना है, क्या करना है, इसमें थोड़ी तेजी लानी चाहिए। और ये तेजी नहीं लाने का कारण ही शक के दायरे में जाता है कि भाजपा के सांसद हैं, शायद इसीलिए इनके साथ समर्थन हो रहा है, इनके खिलाड़ियों के साथ न्याय जल्दी नहीं हो रहा है। और इसको अविलंब गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को या खेलकूद मंत्री को इस पर बहुत जल्द ध्यान देना चाहिए। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो खिलाड़ियों का मनोबल गिरेगा, और डे बाई डे गिर ही रहा है कि भाई एफआईआर आखिर क्यों नहीं लिखी जा रही है। लेकिन लिख देने, अगर एफआईआर लिख दी जाएगी, आप खुद ही समझिए, एफआईआर लिखने का मतलब है ब्रजभूषण सिंह को, चाहे वो सजा मतलब गलती किए हो या ना किए हो, एफआईआर का मतलब है इमीडिएट गिरफ्तार करना, और गिरफ्तार करके कोर्ट में उसकी कार्रवाई करना, और कोर्ट में जब तक लंबित रहेगा केस तब तक पैरोल पे या जमानत देकर के वो बाहर आ सकते हैं, जेल जाना निश्चित हो जाएगा। तो अब ये जांच का विषय है, और इस जांच के विषय को काफी दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, ये मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, भारत देश के हर व्यक्ति को महसूस हो रहा होगा कि अब इसकी जांच होकर के खेलकूद मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और कोर्ट को, प्रशासन को आगे आकर के इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर देना चाहिए। अगर ब्रजभूषण सिंह दोषी हैं तो निहायत उनको एकदम बढ़िया तरीके से उनको घसीट करके जेल में बंद कर देना चाहिए, और अगर वो ठीक है तो तुरंत से निर्णय दे देना चाहिए, ताकि समाज में जो चर्चाएं फैली हुई हैं, यौन शोषण एक बहुत बड़ा ब्लेम है, तो इस पर जल्दी विचार करके और इस कार्रवाई को करना चाहिए। इस बात की भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, खेलकूद मंत्री, न्यायालय, इससे अपील भी करना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी क्लोज किया जाए। अच्छी बात कही, जल्दी से जल्दी इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जो मेडल लेके आते हैं तो खुद अपनी भी जो वाहवाही है वो करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, पर अभी उनके ऊपर आई है तो जांच क्यों जल्दी नहीं हो रही है। और अशोक जी, जिस प्रकार से वो लोग बोल रहे हैं कि क्रिकेटर्स को भी जुड़ना चाहिए, बाकी सबको भी जुड़ना चाहिए, सबकी अलग अलग पसंद है, सबकी खुद की पसंद भी हो सकता है, और कपिल देव में भी जो कहा, जिस प्रकार से आपने भी कहा कि क्रिकेटर्स को उसमें जुड़ना चाहिए, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। इससे बाकी खिलाड़ियों की बात करें, दूसरे स्पोर्ट्स की जो बात करें, कितना मनोबल उनका गिर सकता है इस घटना से। पहली बात तो मनोबल गिरने की यहाँ पर इसलिए बात नहीं कि एक चीज किसी ने कही, उसकी एफआईआर नहीं हो रही, इसके लिए सब स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि दूसरी स्पोर्ट्स में नहीं हुआ है, या तो कोई ऐसी चीजें पहले नहीं हुई, या तो कभी बाहर नहीं आई है, बहुत बार हुआ है। और कोच और प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी को पूरा पावर होता है कि किस तरह से खिलाड़ी को आगे बढ़ाए, किस तरह से उसको खिलाए। तो उनकी मर्जी और उनकी मर्जी ये दोनों चलती है कि वो खिलाड़ी वो टूर्नामेंट में खेलेगा कि नहीं खेलेगा। इसके लिए जो नया लड़का या लड़की वहां जाती है तो काफी अच्छे सरेंडर होती है कि हाँ भाई आप कहोगे इस तरह से जाएंगे, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद नाम होता है। तो वो बीच का जो रास्ता है, बीच का रास्ता बहुत कठिन है। वहां पर कोचिज भी होते हैं, ऑफिशियल्स भी होते हैं, इस तरह की घटनाएं भी होती है, और कुछ अच्छे कोच और ऑफिसर्स भी होते हैं। ये बात नहीं है कि सब खराब है या तो सब अच्छे हैं, लेकिन ये जो पूरा खिलाड़ी बनने से लेके टूर्नामेंट पे जाके मेडल लेने के बीच का रास्ता है, बहुत ही कठिन है। और ये सिर्फ कुश्ती में नहीं, हर कोई स्पोर्ट्स में, और ये स्पोर्ट्स में एक गौतम गंभीर ने अभी एक बहुत ही उनके वहां कोई भी आया था, तो उन्होंने बताया कि भाई वो लेडी थी, उसको न्याय नहीं मिल रहा था, उन्होंने एफआईआर करवाई थी। तो क्रिकेट में भी हुआ था ऐसा, तो सब जगह पे। लेकिन कहने का मतलब जितना डिले होगा, लोग बढ़ते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये जी। अशोक जी, वो एक बात और की, जो हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन है, रेसलिंग एसोसिएशन है,
उनके जो मुखिया है राकेश जी, उन्होंने कहा है कि फोगाट परिवार रेसलिंग फेडरेशन पे अपना कब्जा जमाना चाहता है। इस बात को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो चलो मान लेता हूँ, सब कुछ मान लेता हूँ, लेकिन ये कब तय होगा? जब उसकी जांच होगी। कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई किसी के कहने से, अगर ये जो खिलाड़ी लोग भी कहते हैं कि कुछ गलत हुआ, तो उनको प्रूव तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो किसी को नहीं होने वाला है। जबकि अगर ये जो फेडरेशन वाले बोलते हैं कि नहीं, इसको बदनाम करते हो, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। जैसे जांच होगी, जैसे अजय जी ने बताया कि जांच होगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जांच डिले हो रही है, लोगों के मन में शंकाएं घर कर रही है, और साथ में सभी एसोसिएशन जुड़ रहे हैं। ये क्रिकेट में आया, कल बैडमिंटन होगा, कल टेनिस होगा, हर कहीं पे छोटी मोटी घटनाएं आती है, होती है, हमने पढ़ी है। ये सब जब जुड़ेंगे तो ये मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है भारतीय खेल के लिए। ये मैं जानता हूं, क्योंकि अगर आपको हर किसी को आप शंका के दायरे में देखोगे, जब आप कोच होगा वहां से शुरू करेंगे, कैरियर के जाके आप टॉप पे खेलोगे, तब तक ये संभव नहीं है। आपको भरोसा करना पड़ेगा, वो भरोसा दिलाना पड़ेगा और भरोसा करना पड़ेगा, दोनों चीजें। ये खेल के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, पर जांच जल्दी हो तो क्या सच है वो बाहर आए। अजय जी, जिस प्रकार से अभी बात करें, इसके पहले भी जब धरना दिया था तब कांग्रेस ने समर्थन किया था। इस मुद्दे को अभी राजकीय रंग देने की कोशिश हो रही है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, अभी पुरजोर तरीके से नहीं हो रही है। अगर पुरजोर तरीके से होती तो फोगाट परिवार के साथ क्रिकेट एसोसिएशन और हॉकी एसोसिएशन, सारे एसोसिएशन आकर के आज उनके समर्थन में खड़े होकर के ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ होता। मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाना एक अलग बात है, और एलिगेशन का पाया जाना ये अलग बात है। सरकार ने इसीलिए ऐसी व्यवस्था की है कि आपका अगर कोई पुलिस थाने या चौकी में कोई एप्लीकेशन नहीं लिया जाता है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन एप्लीकेशन या ओरल एप्लीकेशन जब आप किसी थाने चौकी में देते हैं तो उसके लिए एक विवेचना अधिकारी तय किया जाता है, और उस विवेचना अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि विद इन शॉर्ट टाइम उसकी जांच करके कि हाँ ये एलिगेशन हुआ है या नहीं हुआ है, एफआईआर में तब्दील करके उस मुलजिम को गिरफ्तार करें और कोर्ट में पेश करें। यह उसकी मोरल ड्यूटी बनती है। लेकिन हमें चिंता का विषय दो तरह से आ रहा है कि क्या फोगाट परिवार इतना ही अगर सच है तो भारत देश का खेल जगत का जो व्यक्ति है वो उनके साथ पूर्ण रूप से क्यों नहीं है? और अगर वह गलत है तो ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग उनके साथ नहीं आ रहे हैं। मैं फोगाट परिवार के समर्थन में हूं कि ठीक है, उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की है, थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। और ब्रजभूषण सिंह अगर गलत है तो मैं तो बार बार कहता हूं कि भारत देश के ब्रजभूषण क्या, कोई भी व्यक्ति हो चाहे किसी भी पद पे हो, अगर वह गलत है तो उसको तुरंत से तुरंत जो है विवेचना में जांच करके गिरफ्तार करके उसे सजा देनी चाहिए, ताकि ये यौन शोषण जैसी घृणित कार्य को करने वाले को सबक मिल सके। मैं आज भी इस अशोक जी की बातों से मैं सहमत हूं। अशोक जी की भी चिंता बिल्कुल सही है, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी चिंता सही है कि इसका कम से कम जल्दी निर्णय हो। और अगर ये जल्दी नहीं निर्णय होता है तो भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होती है। नरेंद्र मोदी गृह मंत्री, खेलकूद मंत्री या अन्य स्पोर्ट्समैन जो भारतीय जनता पार्टी में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो या भारत देश का प्रधानमंत्री हो, अगर उसके ऊपर एलिगेशन लगा है तो उसकी जांच होना जरूरी है, और जल्द जांच होना जरूरी है। ये तो बहुत लेट हो रहा है। तो ચોક્કસથી જે પ્રકારે જાંચ છે જેની તપાસ છે તે જલ્દીમાં જલ્દી થવી જોઈએ, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ ઉપર આ પ્રકારે આરોપ લાગી રહ્યા છે, છબી ક્યાંક ને ક્યાંક ખરડાઈ રહી છે, અને આરોપ તો સામે પક્ષે પણ લાગી રહ્યા છે, બંને સામે પક્ષે એકબીજા પર આરોપ લાગી રહ્યા છે, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટ હવે શું નિર્ણય કરે છે તેના પર સૌની નજર છે તે રહેવાની છે। અત્યારે આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા અશોકજી और अजय जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक मित्रों, हॉट टॉपिक में અત્યારે બસ આટલું જ। ફરી મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।